ने पढ़ा था that trapezium is not having any line of symmetry. Isosceles trapezium has one line of symmetry. Okay, isosceles trapezium is a trapezium where opposite sides are equal. So in that case, the line of symmetry is there. But when you talk about only trapezium, it is not having any line of symmetry. So this is the misconception which students have. Okay. Another one is the line of symmetry in S. आपको याद होगा मैंने उसमें भी आपको बताया था कि एस में लाइन ऑफ सिमेट्री बेटा नहीं होती है, ना वर्टिकल होती है ना हॉरिजॉन्टल होती है। रीजन क्या है उसका? क्योंकि एस को अगर आप गौर से देखोगे तो उसका एक पोर्शन लेफ्ट में है और एक पोर्शन जो बैक नीचे का डाउन वाला है वो राइट की तरफ, लाइक सॉरी, एक जो है वो लेफ्ट की तरफ, एक जो है वो डाउन राइट की तरफ है। सो अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो आपको एकदम सेम पोर्शन ऑफ, लाइक वी कैन कॉल इट मिरर इमेज, वी डोंट गेट एग्जैक्टली। ठीक है, A is the alphabet which has only one line of symmetry. Now O is the alphabet which has two line of symmetry. B is the alphabet which has only one line of symmetry. Q is not having any line of symmetry only. So I think the answer will be O. So the answer will be 3 is a numeral which has one line of symmetry. Can you tell me it is vertical line of symmetry or it is horizontal line of symmetry? जल्दी से बताइए. Correct. 3 alphabet has horizontal line of symmetry. So question number 3 is telling the mirror image of B. Now you are knowing कि अगर हम B alphabet को mirror के सामने रखेंगे बेटा तो हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी. मैम डी. मिलेगा. Yes, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा mirror image में. Which of the following figure does not have a line of symmetry? So here you will see rectangle. Rectangle has two line of symmetry. Parallelogram, if you remember, parallelogram के पास कोई symmetry नहीं थी. पैरेललोग्राम के पास कोई भी सिमेट्री नहीं थी. स्क्वायर के पास 4 लाइन ऑफ सिमेट्री थी और आइसोसेलेस ट्रायंगल के पास भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री थी. इट मींस केवल एक फिगर था पैरेललोग्राम जिसके पास कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी. सो द आंसर विल बी पैरेललोग्राम. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द शेप विथ अ डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री इज. ए वाले फिगर में आएगा डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री. ऑप्शन नंबर ए विल बी हैविंग diagonal line of symmetry. The first fill in the blanks will be the figures do not have line of symmetry are called asymmetric or non-symmetric. ठीक है, so it can be asymmetric or it can be non-symmetric figures. Now moving on to the second one is the line about which a figure is symmetrical is called. Answer. Very good. The answer is line of symmetry. Can anyone tell me what is the other name of line of symmetry? Can you tell me what is the other name of line of symmetry? I told you two names. Very good, Saurav. It's axis of symmetry. AXIS, axis of symmetry. It was the other name of symmetry. Line was axis of symmetry. So, question number 3 is telling the line of symmetry is also called axis of symmetry. Correct, it is called axis of symmetry. That is the another name of symmetry, है ना? Now question number 4, the blank of a circle is its line of symmetry. Now you must be knowing कि जब भी आप सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हो तो हर बार एक नया डायमीटर मिल जाता है आपको. ठीक है, हर बार जो उसकी लाइन है वो एक डायमीटर की तरह हमको प्रेजेंट करती है. दैट मीन्स दैट सर्कल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 fill in the blanks will be diameter. Now moving on to question number 5, find out the numbers from 0 to 9 those who have lines of symmetry written in digital calculator. And remember the answer is 1. 1 has line of symmetry. 3, it has line of symmetry. 8, it has line of symmetry, and 0. So the answer for this one will be 1380. Total 4 digits in a calculator which have line of symmetry. So remember किसी भी line का जब आप
सिमेट्री लाइन ड्रॉ करते हो किसी भी लाइन की, आप उसको सिमेट्रिकल बनाते हो या उसको बीच में से डिवाइड करते हो, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। और हमेशा याद रखो जो सिमेट्री लाइन होती है वो फिगर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब होता है बाइसेक्टर। बाइसेक्ट, द वर्ड बाइसेक्ट means that you are dividing anything into 2 equal parts। और जब हम कभी भी 2 equal parts की बात करते हैं, we are talking about the word bisect, ठीक है? We are talking about the word bisect, and remember the word bisects represent for making 2 equal parts, ठीक है? तो यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी जो लाइन है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो जब भी हम किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं सिमेट्री लाइन के थ्रू, तो उसे बोला जाता है, उस लाइन को जो हम ड्रा करते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री को, उसे बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और अगर हम किसी एंगल को डिवाइड करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में उसकी सिमेट्री लाइन बना के, तब उसे बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? रिमेंबर दीज 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू टुडे, ठीक है? किसी एंगल को जब हम सिमेट्री लाइन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उस समय हम उस सिमेट्री लाइन को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है? और अगर हम किसी लाइन को डिवाइड करते हैं तब हम बोलते हैं उसको लाइन बाइसेक्टर। आई एम टीचिंग यू थ्रू बोर्ड, जस्ट अ मिनट नाउ। So here in first figure, if you will see that it is a line and you have to draw line symmetry. So you are knowing जब आप इसकी line symmetry draw करोगे तो बेटा just middle से जाएगी, है ना? एकदम मिडिल से जाएगी, बिकॉज इसको 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। एंड रिमेंबर जब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे आप, तो ये 4 में और ये 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखो इस लाइन को, जो कि जिसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हो, उसको इस लाइन में आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वी कॉल इट, दिस इज द अदर नेम इन दिस केस, जब लाइन दी हुई हो तब। और जब एंगल दिया हो और आप लाइन ऑफ सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी, तो जानते हो आप इस तरह से तो ड्रॉ होगी नहीं, इधर से ड्रॉ नहीं होगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से जाएगी, है ना? एकदम मिडिल से जाएगी, इसको इस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो इस केस में इस लाइन ऑफ सिमेट्री को यहाँ पर बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। Angle bisector, why we call it angle bisector? The word bisector is common. Bisector का मतलब होता है बेटा 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और ऊपर वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, लाइन को डिवाइड कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट में, तो हम उसको लाइन बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी बोल सकते हैं। और दूसरे वाले क्वेश्चन में हम एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं सिमेट्री लाइन के थ्रू, सो वी कॉल इट एंगल बाइसेक्टर इन दिस केस। Question number 2 is telling here that a semicircle has 2 line of symmetry, 3 line of symmetry, 1 line of symmetry, none of these. Now you must be knowing, we have done this topic, a semicircle has only 1 line of symmetry, that is vertical, not also horizontal. It is only vertical. ऊपर से draw करते हो आप, है ना? So this is vertical line of symmetry in semicircle. In choose the correct option, first one is perpendicular bisector and the second one is 1 line of symmetry. Okay, so homework part में क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो याद रखिएगा ए एंड बी दोनों ही फिगर में एक ही एक लाइन ऑफ सिमेट्री आएंगी और दोनों की दोनों वर्टिकल होंगी। So the first one in question number 2 is alphabet Z. It has line of symmetry or no? It does not have line of symmetry and the answer will be number of line of symmetry will be 0. So no and 0. S, yes or no? S, alphabet S. So remember, correct, alphabet S is having no line of symmetry and number will be 0. So no line of symmetry and then 0. Then H, yes, it has line of symmetry and it will have 2 line of symmetry, alphabet H. Then N, no, 0, because alphabet N is not having any line of symmetry. So alphabet N will be having no and 0. Then alphabet C, yes and 1. Correct, Kashish, you have given all the answers correct, and Shishti also all the answers correct to me.
Remember, here you have to write it down. They have line of symmetry also, and how many line of symmetry they have, that also you have to mention. That there was a poster making competition organized in a school, and the topic was polite. One child was not able to bring the color due to lack of money. Sham helped the boy and gave him color. Because of his, he himself came late in the competition. But finally, he was surprised to know that he got first prize as his poster was giving message to society. Draw the line of symmetry of the alphabets polite on the graph paper. अब आपको क्या करना है बेटा, पोलाइट में कौन कौन से अल्फाबेट्स होते हैं? P, O, L, I, T, E. We have 6 alphabets, no? तो आपको क्या करना है, एक एक अल्फाबेट को उठाना है और उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. आपको पूरे के पूरे अल्फाबेट में सिमेट्री कैसे ड्रॉ की जाती है, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू. तो P, पहले P में आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाओगे, फिर O में बनाओगे, फिर L में बनाओगे, फिर I में, फिर T में, फिर E में. ठीक है. और नीचे आप लिखेंगे भी कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री P में है, कितनी O में है, कितने L में है, कितनी I में है. ठीक है. एंड उसके बाद इट इज टेलिंग व्हाट वैल्यू डू यू सी फ्रॉम श्याम, and then find one good quality of your best friend and draw line of symmetry in letters wherever possible. इसमें क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड की एक गुड क्वालिटी को मेंशन करना है, लाइक हार्ड वर्किंग, मे बी यू कैन राइट इट डाउन, अ गुड डांसर, any good topic, any good quality which you have to mention here. It should be mentioned in small lines, small words only, like good looking, like it can be humble, it can be polite, it can be silent, it can be artist, like this. ठीक है. और उसके बाद आपको उसके क्वालिटी के जो अल्फाबेट्स हैं उनमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ होमवर्क पार्ट. नाउ मूविंग ऑन टू, करना है इस क्वेश्चन में आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की क्वालिटी लिखनी. सपोज मेरी बेस्ट फ्रेंड स्मिता मैम, ठीक है, मेरी बेस्ट फ्रेंड स्मिता मैम. स्मिता मैम इज अ हार्ड वर्किंग. ठीक है. सो आई विल राइट इट डाउन द फुल स्पेलिंग ऑफ हार्ड वर्किंग, HARD, हार्ड, WORKING, हार्ड वर्किंग. पूरा वर्ड लिख दिया हार्ड वर्किंग. अब उसके बाद H की लाइन ऑफ सिमेट्री में लिखूंगी ड्रॉ करने के बाद, फिर O की लिखूंगी कितनी है, फिर R, ऐसे करके, फिर D, ऐसे करके पूरे के पूरा जो स्पेलिंग है उस स्पेलिंग को मैं क्या करूंगी, ब्रेक करूंगी. और ब्रेक करने के बाद आई विल ड्रॉ लाइन ऑफ सिमेट्री इन ईच अल्फाबेट ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. क्या करना है बेटा, मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम. फाइंड द अल्फाबेट्स विथ लाइन ऑफ सिमेट्री इन द फॉलोइंग वर्ड. आपको यहाँ पर हम्बल वर्ड दिया है, सेकंड में आपको करेजियस वर्ड दिया है. आपको इसमें क्या करना है, एक एक अल्फाबेट उठाना है, लाइक H, फिर देन उठाना है U, फिर M, फिर B, फिर L, फिर E, और एक एक करके हर अल्फाबेट में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है बेटा. ठीक है. एक एक करके हर अल्फाबेट में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और लिखना भी है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, H में कितनी है, U में कितनी है, M में कितनी है. एंड रिमेंबर प्लीज, यू कैन रेफर दिस क्वेश्चन इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो. अगर कॉमेंट में स्पेस नहीं है तो आप ये क्वेश्चन को फेयर कॉपी में कर सकते हो बेटा, वो ज्यादा इजी पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाओगे.